Good morning and Abivadan. सभी को सुप्रभात, शुभ संध्या और मेरी ओर से अभिवादन। I want to thank you, brothers and sisters, for allowing me to speak to you this morning. और मैं आप प्रत्येक भाई बहनों का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा, मुझे आप सभी के सामने बोलने का अवसर देने के लिए। I'm especially encouraged by the passage that you chose for me this morning from First Thessalonians chapter 4, verses 13 through 18. और जो वचन आप लोगों ने मेरे लिए आज चुना, पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसका 14 से लेकर 18 पद, उसके बारे में मैं काफी आनंदित हूँ। Please allow me to read the passage first in English in its entirety, and then it'll be read and translated. और मुझे पहले इंग्लिश में भी पढ़ना है, उसके बाद फिर हम उसको हिंदी में भी पढ़ेंगे। The Apostle Paul writes, Brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind, who have no hope. For we believe that Jesus died and rose again. So we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him. According to the Lord's word, we tell you that we who are still alive, who are left until the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will come down from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who still are alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. Therefore, encourage one another with these words. आइए हम वचन को पढ़ें। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री, उसका 4 अध्याय 13 पद से लेकर 18 पद इस प्रकार कहता है। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमको यह कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, स्वयं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही ही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। और इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। आमीन। Amen. So I want you to imagine that you're at a train station or a bus station and you're waiting for somebody to get off the train, and you look and you see a man who is very distressed and yet hopeful, and he's waiting for somebody special. अब प्रियो, मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, कल्पना करके देखिए कि आप एक बस स्टॉप पे हैं या फिर रेलवे स्टेशन में हैं, और आप ट्रेन से लोगों को उतरने का आप इंतजार कर रहे हैं, और उसी मध्य में आप एक ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं जो पूरी तरीके से हताश हो गया है, निराश हो गया है, लेकिन उसके हृदय में एक छोटी सी उम्मीद है कि कोई मुझे आएगा और कहेगा कि सब ठीक होने वाला है। When you talk to the man, you find out that he is waiting for his long lost brother. He has not seen his brother in many, many, many years, and he's anxiously looking forward to his brother coming off the bus, coming off the train, and greeting him and embracing him because he's missed his brother, and it's been so long since they have seen each other. और आप उससे बातें करते हैं, बातें करने से ये मालूम पड़ता है कि वो अपने उस भाई का इंतजार में है जो कई साल पहले खो चुका है। और उस बस स्टॉप के आगे, उस रेलवे स्टेशन के आगे
बैठा रहता है इस इंतजार में कि अभी उसका भाई आएगा, अभी उसका भाई आएगा, अभी उसका भाई आएगा, क्योंकि उसे बिछड़े हुए काफी समय हो गया है और वो अपने भाई से बहुत ही प्रेम करता है। All the people start coming off, and he's looking around, but he cannot find his brother. And finally, his eyes meet his brother, and they run to each other, and they embrace, and they hug, and they have tears of joy, and they rejoice because they have not seen each other in so long, and now there is a reunion. और जब एक ऐसा दिन आता है इंतजार करते 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 कि उस बस या उस ट्रेन से उसका भाई उतरता है और वे एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को भाग कर गले लगा लेते हैं और एक दूसरे को प्यार करते हैं और कहते हैं, वो उनका दुख वहां पे गायब हो जाता है, क्योंकि इतने सालों से एक दूसरे के लिए वे तड़प रहे थे, इंतजार कर रहे थे। This is exactly like what we're going to experience when Jesus comes in the clouds of heaven. It's going to be a और moment just like that. और प्रिय, आपको मैं बताना चाहूंगा, इसी प्रकार का परिस्थिति, इसी प्रकार का हालत, वो समय होने वाला है जब हम प्रभु यीशु मसीह को बादलों पर आते हुए देखेंगे, तब हमारा हालत भी उसी प्रकार होगा। Yes, it's not going to be quiet. There'll be a shout, the voice of the archangel, the trumpet of God. और वहां पे कोई चुप नहीं रहेगा, स्वर्गदूत का शब्द सुनाई देगा, प्रधान स्वर्गदूत का शब्द सुनाई देगा, तुरही फूकी जाएगी। And all those who have died in Christ will be there. और उसी समय जितने भी मसीह में मरे हुए हैं, सो गए हैं, उस समय दिखाई देंगे उनके साथ। We will all be united as one body before our Lord and Savior in the clouds. और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामने उस बादलों पर हम एक हो जाएंगे और एक मिल जाएंगे। The Apostle Paul tells us these great truths so that we will not grieve like those who have no hope. और इसी कारण प्रियो, प्रेरित पौलुस हम सभी को अपने वचन के द्वारा ये संतावना देता है कि उन लोगों की तरह जो कि दुख में रहते हैं, शोक करते हैं, हम दुखी ना हो जो कि सो गए हैं उनके बारे में। We are just people standing at the station, and we are waiting for that day when Jesus will return. हम उस व्यक्ति के समान है जो उस बस स्टेशन में रुका हुआ है, उस रेलवे स्टेशन में रुका हुआ है और प्रभु यीशु के आने का इंतजार कर रहा है। Now, let me tell you about the background of this passage because we have to know a little bit of something about the church in Thessalonica. और प्रियो, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इस पुस्तक के इस वचन के बारे में मैं आपको पृष्ठभूमि देना चाहता हूँ, क्योंकि थिस्सलुनीकिया के कलीसिया, उस शहर में पाए जाने वाली कलीसिया के बारे में थोड़ी जानकारी जानना भी बहुत ही जरूरी है। It, Thessalonica was a Roman city. It was a big city for trade. A lot of people traveled back and forth, and they were filled with all different religious philosophies and thinking. और थिस्सलुनीकिया की जो शहर था, रोमन साम्राज्य का एक बहुत ही बड़ा शहर था, और उस जगह में व्यापार बहुत अत्यधिक किया जाता था, लोग आते लोग जाते, और साथ ही साथ उस जगह में और भी कई प्रकार के अन्य अन्य धर्म के लोग भी पाए जाते थे। According to the book of Acts, chapter 17, the Apostle Paul founded this church in his second missionary journey. और प्रेरितों के काम 17 अध्याय के मुताबिक पौलुस ने, जो प्रेरित पौलुस है, इस कलीसिया की स्थापना अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान की थी। Luke tells us that because of persecution, the Apostle Paul couldn't stay, and so he had to cut his time short. And there were very many gaps in their understanding of what it meant to wait for the coming of Jesus and wait for the resurrection. प्रियो, ध्यान से सुनिएगा, जो लुका हमें इस प्रकार से बताता है कि पौलुस जैसे थिस्सलुनीकिया के
शहर में पहुंचता है तो इतने सताव को वो जब सामना करता है, तो वहां पर कई सारे गतिविधियों को उसने देखा, कई सारी पाबंदियों को उसने देखा, और वचन के प्रचार में उसे बहुत सारे रोके मिले, लेकिन उसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलता है कि किस प्रकार से सारी घटनाएं घटी। लेकिन जो जानकारी हमें मिलता है वो ये है कि पौलुस ने उस जगह में फिर स्थापना की। You have to understand the Christians had many questions about the resurrection. They wanted to know what would happen if you die before the return of Jesus, and would they receive the same blessing as those who are alive waiting for the coming of the Lord? और बहुत सारे मसीह भाइयों बहनों का ये प्रश्न होता है कि मृत्यु के बाद क्या होगा। जो मसीह के आगमन से पहले जिनका मृत्यु हो गया, जो प्रभु में सो गए हैं, उनका क्या हालत होगा, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं अन्य अन्य प्रकार की धारणाओं के साथ जीते हैं। लेकिन मसीहों में यह प्रश्न उठता है कि एक व्यक्ति जो प्रभु के आने से पहले जिनका मृत्यु होता है, उनका हालत क्या होगा। The Apostle Paul wanted to reassure them that those who have already died would not be left out, that they would receive the same blessing as those who of us who are alive and remain at the coming of the Lord. और प्रेरित पौलुस उन भाइयों को बताता है कि जो लोग मसीह में सो चुके हैं उनकी हालत कुछ अलग नहीं होगी। वे भी प्रभु के साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे, उनके साथ साथ जो कि जीवित रहेंगे और बचे रहेंगे। The world the world of unbelievers do not have any hope of life after death because they do not believe in the God who can raise the living and the dead. और जो और जो अविश्वासी है, वे इस प्रभु में विश्वास ही नहीं करते कि मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है। तो उनके जीवन में ऐसा विश्वास ही नहीं होता है कि मृत्यु के बाद भी उन्हें जीवन प्राप्त होगा। We serve a God who raises the living through the waters of baptism, causing us to be born again to a living hope in the resurrection. क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा है कि जो कि बपतिस्मा के पानी के द्वारा हमें पुनः जिलाता है, हमारा पुनरुत्थान करता है, ताकि हम परमेश्वर के साथ जी पाए। And having been born again, we escape the second death in that we are raised to new life at the coming of our Lord and Savior Jesus Christ. और और उसके बाद जब हम मसीह में दोबारा जी उठते हैं, हम उस दूसरे मृत्यु को हम चकमा दे देते हैं, ताकि हम आने वाले समय में मसीह के साथ हम अनंत जीवन के भागीदारी बनने पाए। If we think about this, they were experiencing persecution, some that led to death. And they were wondering, is our faith going to be realized? Are we going to be able to experience new life even after all this horrible tragedy that has befallen many of our brothers and sisters through persecution? क्योंकि उन दिनों में ऐसे भाई और बहन थे जो कि इतने इतने सताहों में, इतने बड़े बड़े सताहों को वो अपने जीवन का सामना कर रहे थे कि उनके मन में ये विचार आते थे, क्या होगा यदि इस समस्या के बीच में मेरा मृत्यु हो जाएगा, तो मैं कैसे प्रभु को देखने पाऊंगा, मैं किस प्रकार से प्रभु के साथ जाऊंगा, कैसे मेरा स्वागत होगा। इन सारी चीजों में उन जितने भी विश्वासी थे, उनके मन में दुविधाएं पैदा हो गई थी। One of the wonderful comforts that we have in Scripture is that many times death is simply referred to as going to sleep. और हम जो मसीह में हैं, हमारे लिए सबसे उत्तम बात यह है मेरे प्रियो, कि बाइबल में हमें जो बताया गया है कि मृत्यु हमारे लिए एक नींद के ही समान है, उससे अधिक नहीं। That's right. In fact, Jesus has taught us about the resurrection when he said, I am the resurrection and the life. और यीशु मसीह ने भी पुनरुत्थान के बारे में हमें सिखाया है। प्रभु यीशु ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। When he raised Lazarus from the dead, he demonstrated to Martha that he was the resurrection and the life, and that man would live even if he dies if they put their faith in Jesus. और प्रभु यीशु ने जब लाजरस को मृतकों में से जी उठाया, तब उसने मार्था से कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, और यदि जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा, भले ही वो मर भी जाए तो भी परमेश्वर उसे जिलाएगा।
That is why he told his disciples when he went to Lazarus's house that our friend Lazarus is asleep. और इसी कारण ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, इसी कारण यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है लाजर के घर जाने से पहले, हमारा मित्र सो रहा है। The disciples did not understand. They said, if Lazarus sleeps, he'll simply recover. और चेले कहने लगे, वो तो समझ नहीं पाए थे क्या हो रहा है। वो कहने लगे अगर वो सो रहा है तो वो तो ठीक हो जाएगा ना खुद ब खुद। But in John chapter 11, Jesus explains to them, our friend Lazarus is dead, but I go and God will be glorified because I go. और यूहन्ना की पुस्तक 11 अध्याय में यीशु मसीह स्वयं कहता है कि हमारा मित्र लाजर सो रहा है, लेकिन हमें वहां जाना है, मैं वहां जाऊंगा और पिता परमेश्वर की उस जगह में महिमा होगी। People who sleep wake up. People who die in Jesus rise again. जो सो रहे हैं वे उठ जाएंगे, मसीह में जो मर चुके हैं वो पुनरुत्थान में जिलाए जाएंगे। In verse 14, it says, for we believe that Jesus died and rose again, and even so, he will bring with him those who have fallen asleep in Jesus. याद रखिएगा 14 पद कहता है, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर भी उन्हें जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। The resurrection of Jesus is the foundation of our hope. याद रखिएगा यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे विश्वास का नींव है। Christ demonstrated that power in himself, that he rose from the dead and he therefore conquered death. और प्रभु यीशु ने अपने सामर्थ्य को बताया जब उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, कि उसने मृत्यु को हरा लिया है। Now, the apostle goes on to say in verse 15 that we who are alive shall not go before those who have fallen asleep. और 15 पद में कहता है कि हम जो बचे रहेंगे, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते, जो जीवित है और जो प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो वे उसे कभी आगे ना बढ़ने पाएंगे। They are not at a disadvantage because they died first, but in fact, they will be first to be raised. अब जो प्रभु में पहले सो गए हैं उनका कोई फायदा नहीं उठाया जाएगा, परंतु वे ही सबसे पहले उठाए जाएंगे। And then we have this majestic picture of Jesus in verse 16, where he says, for the Lord himself will come down from heaven in the clouds. और उसके बाद 16 पद में एक महिमित चित्र को हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, और कहता है कि क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। Just like the angel said to the disciples when Jesus ascended into heaven on the mountain, that Jesus would return in the same way that the disciples saw him go. उसी प्रकार जैसे स्वर्गदूतों ने चेलों से कहा, जिस यीशु को तुम आकाश की ओर जाते देखते हो वही यीशु आकाश से वापस आएगा, और उसी प्रकार पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। I am so looking forward to the time where I could say hello again to those brothers and sisters that we have lost. और मैं उस दिन के लिए बहुत ही ज्यादा अत्यंत इंतजार कर रहा हूं कि मैं अपने उन भाइयों और बहनों को कह सकूं, हे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं तुम्हें मिलकर आनंदित हुआ। There is no greater encouragement than this passage to tell us that death is not the end, and we just have to wait for the grand reunion. और मेरे प्रियो, कोई और दूसरा मौका नहीं है कहने का, क्योंकि मृत्यु केवल एक दूसरा चरण है, क्योंकि मृत्यु के बाद भी हमें परमेश्वर जिलाएगा और उस अनंत जीवन का भागी देगा। It hurts when we miss people. It hurts when people die. We have sorrow and grief. And the Apostle Paul isn't saying to do away with grief. He just helps us to have a better perspective on it. और मेरे प्रियो, बात सच है कि जब कोई प्रिय हमसे दूर होता है, जब किसी का मृत्यु होता है, वो दुखता है, चुभता है, दुख देता है, लेकिन प्रेरित पौलुस हमें कहता है कि हमें उस दुख से अलग नहीं होना है, उस दुख को नहीं पकड़े रहना है, क्योंकि हमें प्रभु में एक नई आशा और उम्मीद है। Mhm.
You see, death is just a separation for a time. Even Jesus wept. It's okay to grieve, but we know that we have hope that one day we will be reunited with those who have died in Christ. और मेरे प्रिय याद रखिएगा कि दुख होना, दुखी मनाना, ये आम बात है। यीशु भी रोया था, लेकिन हमें ये उम्मीद होना चाहिए, आशा होना चाहिए कि उसके बाहर भी, उसके बावजूद भी हमें मसीह में विजय है और पुनरुत्थान है। I'd like to read to you from John, the Gospel of John, chapter 5, and verse 24, where Jesus talks about this um, time where there will be a resurrection. And allow me, please, just to read John 5, 24 through 30. और मैं आपके बीच में यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय 24 से लेकर 30 पद में पढ़ना चाहूंगा, जिस प्रकार यीशु मसीह पुनरुत्थान के बारे में व्याख्या करता है और पुनरुत्थान के बारे में वो अपना संदेश को देता है। If it is okay, I'd like to read John 5, 24 through 30, and then in its entirety, and then have it translated. Yes. Okay. Uh, John 5, 24 through 30. Very truly I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be judged, but has crossed over from death to life. Very truly I tell you, a time is coming, and now has come, where the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. For as the Father has life in himself, so he has granted the Son to also have life in himself, and has given him authority to judge, because he is the Son of Man. Do not be amazed at this, for a time is coming when all who are in their graves will hear his voice and come out. Those who have done what is good will rise to live, and those who have done what is evil will rise to be condemned. By myself I can do nothing. I judge only as I hear, and my judgment is just, for I am not seeking to please myself, but him who sent me. यूहन्ना की पुस्तक 5 अध्याय 24 से 30 पद कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह समय आता है और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा ही न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। आमीन। Amen. Um, Jesus says, do not be amazed at the resurrection, because God has always brought life from the dead. यीशु मसीह कहता है कि इसमें अचंभा मत करो पुनरुत्थान को लेकर, क्योंकि परमेश्वर जितने मृतक है उन प्रत्येक को जिलाने वाला है। We can go all the way back to the book of Genesis, where God made man from the dust of the earth. हम उत्पत्ति इसमें जा सकते हैं, जहां पे हम पाते हैं कि परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से मनुष्य को रचा। God has always been a creator and can bring life from dead things. परमेश्वर हमेशा से सृष्टि करने वाला था, और वो मृतक जीवन में से भी एक जीवन को निकाल सकता था। Mhm. I'd like to also read one more passage, if I may. 1 Corinthians 15. And I can't talk about the resurrection without reading this short passage. It's a long passage, but I'm going to read verses 50 through 57. और आइए एक और वचन को हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 15 अध्याय और उसका
50 से लेकर 57 पद तक मैं पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि इसके बिना जो मेरा संदेश है वो अधूरा हो जाएगा। I'll read in English first and then we'll translate. और मैं अंग्रेजी में पहले पढ़ूंगा, उसके बाद फिर हम हिंदी में पढ़ेंगे। All right. 1 Corinthians 15, beginning with verse 50. The Apostle Paul says to the Corinthian church, I declare to you, brothers and sisters, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed. For the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality. When the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with the immortality, then the saying that is written will come true: Death is swallowed up in victory. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of sin is death, and the power of sin is the law. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. आइए हम पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 50 से 57 पद तक पढ़े। हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूं कि सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। और यह क्षण भर में, पलक मारते ही, अंतिम तुर ही फूकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान दे अविनाश को पहन ले, और यह मरणहार दे अमरता को पहन ले। और जब वो यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा, और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा: जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरा जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा जंग कहाँ रहा? मृत्यु का जंग पाप है, और पाप कबल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। आमीन। Amen. That is why we should be so encouraged because we have the victory over sin and death because of Jesus. इसीलिए मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा, हमें हमेशा आनंदित होना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें पाप और मृत्यु में विजय प्राप्त है। And because victory is found only in Jesus, we need to be baptized into Jesus Christ. और क्योंकि विजय केवल प्रभु यीशु मसीह में है, इसी कारण हमें प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा भी लेना है। We must be born again so that we can live forever with God. हमें एक बार फिर से जी उठना है, ताकि हम परमेश्वर के साथ अनंत जीवन बिता सके। That is why in the book of Revelation it says, Blessed are those who die in the Lord from now on. और इसी कारण प्रकाशित वाक्य में कहता है, धन्य है वे जो कि प्रभु में मृत्यु में सो चुके हैं। It says they shall receive rest from their labors, and their deeds will follow them. और वचन कहता है कि वे अपने परिश्रम से आराम पाएंगे, और उनका आत्मा शांति को पाएगा। Our Heavenly Father will not disappoint us in death. और याद रखिएगा, हमारा स्वर्गीय परमेश्वर, स्वर्गीय पिता मृत्यु में हमें कभी भी निराश नहीं करने वाला है। We as Christians should be the most hopeful people on earth. हम जो मसीह है, पूरे संसार में सबसे अत्यधिक आशा भरा हुआ व्यक्ति होना है। They can take everything from us, they can even kill our bodies, but we will be raised by the power and the victory that is found in Jesus. वो हमारे जीवन से सब कुछ ले सकते हैं, हमें घात कर सकते हैं, मार सकते हैं, लेकिन उसके बाद प्रभु यीशु मसीह में हमें वो पुनरुत्थान के द्वारा अनंत जीवन प्राप्त होगा। And so when Paul writes to the Thessalonians, he tells them
Do not fear death, and do not be sad forever. Don't grieve like those who have no hope. इसी कारण से पौलुस कलीसिया को कहता है कि जो सो गए हैं प्रभु में, उसके कारण शोक मत करो, उनके कारण दुख मत करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में सभी का पुनरुत्थान होगा। One day we will be that brother at the bus station, at the train station, and we're waiting, and our eyes will meet our Savior and Lord, and we'll be caught up together in the clouds with our Savior Jesus. हो सकता है मेरे प्रियो, उस व्यक्ति के समान जो कि उस बस स्टेशन में, उस रेलवे स्टेशन में बैठा था, उसी के समान हम भी हो सकते हैं कि हम पूरे अपनी ईमानदारीता से, हम पूरे निगाहों को लगाकर, पूरे प्रेम से, पूरी लवलीनता के साथ अपने उद्धारकर्ता को देखने के लिए खड़े रहेंगे। I want to wrap my arms around my Lord and Savior. I want to cry tears of joy. I want to rejoice at his coming, and I want to rejoice with my brothers and sisters who've gone before me. और मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि मेरे प्रभु के आने के समय मैं अपने बाहों को खोलूं, अपने आंसुओं के साथ, जय के साथ, आनंद के साथ मैं अपने प्रभु से मिलूं, और जितने भी भाई और बहन मुझसे पहले सो गए हैं, मैं आनंद के साथ उन्हें गले लगाऊं। Often, when people die, some people will cry out, "Why did this happen? Why? Why?" और कभी जब किसी व्यक्ति का मृत्यु होता है, कई ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं, क्यों क्यों हुआ। It is only in death we can experience the joy of eternity. याद रखिएगा मेरे प्रियो, ये केवल मृत्यु ही के द्वारा हम अनंत जीवन के आनंद को हम महसूस कर सकते हैं। The perishable cannot put on imperishable. We have to get rid of the flesh. इसीलिए मेरे प्रियो, जो नासवान है अविनाशी को नहीं पहन सकता है, इसीलिए इस देह को हमें त्यागने की जरूरत है। Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. इसी कारण जो देह और लहू है, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। I imagine when we were infants, life was pretty scary as a baby. मैं अभी कल्पना करता हूँ, जब हम बच्चे थे तो हमारा जीवन काफी डरावना था। I know it was for me. My mom says I cried all the time. मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन मेरे लिए था, क्योंकि मेरी माता मुझे कहते थे तुम हमेशा रोते थे। But after living for a while, I realized the joy in life. लेकिन जब मैं बढ़ा, जब मैं बढ़ते गया, तब मैं जीवन के आनंद को मैं अनुभव करने पाया। And that's what it's going to be like for us. Death may be scary, death may be cause anxiety, but after a while, when we are enter into eternal life, we will not be afraid. We will stop crying. There will be no more tears. There'll be no more sin. There'll be no more suffering. There'll be no more death, but only joy in the presence of God. और मेरे प्रियो, आज के दिन मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, हो सकता है मृत्यु डरावना होगा, हो सकता है मृत्यु काफी घबराए होगा, काफी भयमय होगा, लेकिन उसके बाद जो अनंत जीवन हमें मिलेगा पुनरुत्थान के बाद, वो कितना आनंदमय होगा, कितना उजाला भरा होगा, कितना हमारे लिए बहुत ही आनंदमय रहेगा, और कितने ही आनंद के साथ हम प्रभु के साथ उस राज्य में प्रवेश करेंगे। But right now, we stand at the station and we wait and we have expectation of hope and joy within our hearts as we look forward to the coming of our brother and our Lord and Savior Jesus Christ. परंतु अभी के समय मेरे प्रियो, हम उस बस स्टेशन के सामने बैठे हैं, उस रेलवे स्टेशन के सामने बैठे हैं, और हमारे प्रभु उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आएगा। And all we can say is praise God for his wisdom and his plan and his salvation, which he offers through Jesus Christ. और हम केवल इतना ही कह सकते हैं, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो, उस ज्ञान के लिए, उस अनुग्रह के लिए, उस कृपा के लिए जो उसने हमें प्रदान किया है। Let me conclude by saying that we have four truths that
we can hold on to in this passage. और मेरे प्रियो, मैं अंतिम शब्दों में ये बात कहना चाहूंगा कि चार सत्यता को हम गांठ बांध के रखें जो कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। Number one, we have hope because Jesus was raised. We too can have life, even in death. पहली बात, क्योंकि हमें ये आशा है क्योंकि मसीह यीशु ने मृत्यु को जय पा लिया, तो मृत्यु के बाद भी हमें वो आनंद मिलेगा, वो आशा हमें है। We can also be certain that Jesus is coming and that he will be seen by everybody and we will join him in the clouds. हम इस बात की खोज में रहे कि ये यीशु मसीह दोबारा आएगा, हर एक आंख उसे देखेगा, हर एक घुटना उसे उसके सामने झुकेगा और हम उसे मिलेंगे। And number three, we will all be united. There'll be a reunion, and we will be able to be with those who have died before or those who have fallen asleep in Jesus. क्योंकि हम तीसरी बात, हम सभी फिर से एक हो जाएंगे, वहां पे जितने भी लोग जो कि पहले मृत्यु में थे, सब के सब फिर एक हो जाएंगे। And finally, number four, we need to use passages like this to remind us and receive encouragement to know that we have some great things to look forward to. Amen. और चौथी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि इन सारे वचनों के द्वारा हम एक दूसरे को संभावना देते रहे, क्योंकि वो जो स्वर्ग होगा वहां पे ना रोना होगा, ना दांत पीसना होगा, ना वहां पे क्लेश होगा, ना मृत्यु होगा, कुछ भी नहीं होगा, और परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। आमीन। May God bless you with grace and peace and the encouragement found in the scriptures today. Amen. परमेश्वर आप सभी को जो पवित्र शास्त्र में जो शांति, आनंद और धीरज है, सभी के हृदय में भर दे, और सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आमीन। Amen. Thank you, brothers Amen. and sisters. और आप सभी भाई बहनों का मैं धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से। Thank you so much, our honorable sir, uh, Henner sir. Thank you so much uh, for the great encouragement you have given to every one of us. Thank you so much. And these words which we have heard today, it is uh, those people who are living in the discouragement, disappointment, and these verses, these words can renew their hope once again and encourage them. Uh, so thank you so much, Brother Tanner. Thank you so much for today's lesson that you have shared among us. मैं हमारा फेनो सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जो आशा हमारे पास है प्रभु यीशु मसीह में, वो आशा हमें बनाए रखना है। आज हमने 4 पॉइंट को पढ़ा है, उन्होंने हमें बताया है, इस 4 पॉइंट में हम सभी को उत्साहित किया गया है। तो मैं फेनो सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हामीले 4वटा कुराहरू हामी सिकेका छौँ हाम्रो फेनर सरबाट। सबैभन्दा पहिलो चाहिँ आशा, हामी सबै क्रिस्चियनहरूको सबैभन्दा ठुलो कुरा आशा नै हो, जो प्रभु यीशु ख्रीष्टमा छ, र एक दिन हामी पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग नै हामी रहनेछौँ, र यो हाम्रो आशा हो। र हाम्रो यो आशालाई हामी थामिराखौँ, र अरू पनि 3वटा कुराहरू सरले भन्नुभएको छ, यी कुराहरूलाई हामीले याद राखौँ। र यसको निम्ति आज हाम्रो फेनर सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फेनर सर, थ्याङ्क यू सो मच। और भाई रवि कुमार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छी रीति से ट्रांसलेट किया है आज, तो हम सभी को अच्छी रीति से समझ में आया, क्योंकि जो वचन फेनर सर के द्वारा सुनाया गया है, यदि आप ट्रांसलेट नहीं करते तो कोई भी समझ नहीं पाता पूरा रीति से। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नाउ this is the time for the vote of thanks. We have our Honorable Dave Muktal sir. Dev sir is here. May I request sir to have this time for the vote of thanks. Our Dev sir, he himself is an Asia evangelist, and he is the founder, director of Church of Christ Asia Mission, Bridgeport Church of Christ, Connecticut, USA. So Dev sir, please take your time. Hello. What a wonderful message. What a wonderful sermon. It's amazing. Thank you, Brother
but it was amazing. More than I was swimming, more than I was studying. Thank you so much, every brother and sister, India, Nepal. They might understood how we're gonna be in Christ when we are ready for. Hopefully, they understood. They understood. And if anyone have questions, maybe you have question after this session, after closing prayer, you can ask personally on the site. You can ask question on the chat. Thank you so much, brother Bod, your time, your preparation. Thank you so much for that. And also we have many brother who has served this morning, especially Ravi Kumar. What an amazing translation. Great. Thank you. Thank you. You are amazing translator. Now in Asia, they can recognize there is one translator that will be you. All right. And brother Enos, brother David, brother Meg, and Pena family, brother Hank, brother Nathan, and sister Tammy, your group, singing group, and the Hindi groups, Hindi speaking singing groups. Also now, do we have a Nepali song also? Yeah, okay. So Yes, sir. Nepali, huh? Yes, sir, we're having in the closing song. Oh, okay. All right. Thank you for the Nepali song. Everything you have set up and done well. Thank you, Brother Enos Thapa, and all my teams, especially Brother Enos, Brother Yam, also Brother Milan, Ramananda, Arjun Thapa, Meg. You guys are awesome there. Thank you. Keep doing. God is awesome. So his ministry is going well so far in Asia region. So it is great. Thank you so much for your, especially today, I'm going to thank all of you who joining first time. I hope you like this session. I hope you like this program. If you yes, then please bring more your family, bring your brothers and sister and your family and other neighborhood, as well as your friends and colleagues, your co-workers. Please ask them. And if they have any kind of question, they can ask after this session. Thank you so much. And next week, we will have a ladies webinar. And please, ladies, prepare for that. We have an awesome speaker, sister from the Jamaica. You know that ladies also doing very well, very, very well. And this is our 62nd, which is meant 5 years and 2 months we have been doing this. Without your help, without your prayer, without your petition, we would not be able to do so. हमारे भाई और बहनों हिंदी जो समझते हैं, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, क्योंकि आपके बगैर हम लोग नहीं कर पाते this. इसीलिए हम लोग गुजारिश करना चाहते हैं कि जाइए आपकी कांग्रेगेशन में, आपकी फैमिली में, आपकी और भी जो लोग आप पहचानते हैं, आप लाइए. जो भी आप पहले ज्वाइन हुआ है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद. आप हमारा बहुत प्रेशियस गेस्ट है, पर आप लाइए. बहुत बहुत आपका दोस्त जो है, जो काम करते आपके साथ, उसको भी लाइए. आपका फैमिली जो है, उनको भी लाइए. तो इसीलिए इसको कहता है परिवार, क्रिस्चियन परिवार. तो जोडिएगा हमारे साथ. नेपाली दाजुभाइहरू, तपाईहरुलाई पनि त्यही भन्न चाहन्छु. जो जोइन हुनुभएको छ आज, तपाईहरु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद. तपाईको सहयोग र तपाईको साथ बिना यो प्रोग्राम सम्भव हुने थिएन. र
र यो लगायत धेरैवटा प्रोग्रामहरू भइरहेका छन् हामीसँग। तपाईँलाई थाहा पनि छ कतिवटा प्रोग्रामहरू, र विशेष गरी हाम्रो प्यारेन्टिङ प्रोग्रामलाई चाहिँ तपाईँले नछोड्नु होला। प्यारेन्टिङ प्रोग्रामलाई हाम्रो ब्रदर टिम स्पेसलिस्ट हुनुहुन्छ प्यारेन्टिङको लागि। तपाईँहरूको क्वेसनहरू पनि छ भने ल्याउनुहोस्। र ब्रदर इनोस थापालाई धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँले कन्टिन्यू गर्दै हुनुहुन्छ यो प्रोग्राम। थ्याङ्क यू सो मच ब्रदर इनोस थापा। सो I would like to thank all of you, especially today's speaker and आज का जो वक्ता है और हमारा ट्रांसलेटर है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू होते रहिए, जोड़ते रहिए। परमेश्वर के दिन आएंगे तो एक ही बार हम लोग मिलेंगे वहां पर, ठीक है? ओके।